Once again, a very good evening to all of you, dear students. Dear students, as we have discussed in our previous class, Madam rides the bus, and we have completed this chapter very easily. बहुत आसानी से हमने previous chapter में, ठीक है, previous class में हमने Madam rides the bus chapter को clear किया था, right? मैंने आप सभी को homework दिया था that you have to send your summary. Okay, only few of the students has sent. ओके कुछ बच्चे ही सेंड किए हैं और बहुत सारे बच्चों ने सेंड नहीं किया है, क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल मी गाइस. आदित्य ने पहले ही एक्सक्यूज दे दिया है. ओके और नो मैथ्स बना रहे थे. दिस इज नॉट क्वाइट इनफ. ओके एक्सक्यूज विच यू आर गिविंग. कुछ और एक्सक्यूज बता दो. सर होमवर्क लिंक पर अपलोड किए हैं. वेरी गुड शुभम. तुम डायरेक्ट भेज सकते थे. यस देयर शुड बी नो एनी टाइप ऑफ एक्सक्यूज. ओके देयर इज नो नीड टू गिव सच काइंड्स ऑफ एक्सक्यूज. यस यू कैन शिखर. लिंक पर किए है ना. सो लेट मी राइट द नेम ऑफ दोज स्टूडेंट. दे आर सेइंग दैट आई हैव ऑलरेडी सेंट ऑन लिंक. लिंक पर मैंने भेजा है. तो मिस्टी बोल रही है कि मैंने लिंक पे भेजा है सर. ओके मोर स्टूडेंट. मिस्टी. ओके शिखर. यस आई हैव सीन. साहिल. ओके many more guys because I have to see Akash also. Very good Akash. I will see that. Prerna. Okay very good. Subham. Okay rest of the students. Rest of the students. Muskan is also saying that I have sent. Okay guys, I will see the your homework. Okay after finishing your class today, I will check your homework whether you have sent or not. Okay guys, so let us start our new chapter today which we have to read, and that is hack driver. Okay today we will read the chapter from footprints without feet का ये chapter है which we will read today. Okay आज उसको हम लोग पढ़ेंगे and that is the chapter number 8. आ रही बात समझ में ना. इसके बाद मात्र आपका एक चैप्टर बाकी रह जाएगा इस बुक से. Yes, Vivek, you can say it. Now, guys, there is a need to focus on your screen. Try to hear my words, whatever I am saying. Okay? Let it leave that. We will talk after that about homework. Homework के बारे में हम लोग after finishing our class, we will talk about that. Okay? Class को finish करने के बाद हम लोग बात करेंगे. Now, let us come on the moot point. चलिए main विषय पे आते हैं और बात करते हैं उसके बारे में. And that is our chapter, the hack driver. और वो हमारा chapter क्या है? The hack driver है, guys. Okay? Today we have to read the chapter hack driver, which is a number 8 chapter from your book, that is footprints without feet. Okay everyone. Okay so basically you people have to tell me first, what do you mean by hack driver? What do you mean by hack driver? You have to tell me guys. I'm waiting for your message. Sahil, you have to text the message. Okay if you have any problem then you have to raise your hand, otherwise you can text message. I can see. Okay I'm just giving you a chance to speak about it. Hack drivers, horse car. Okay apart from that, Sahil has given a तो चलिए हम लोग चर्चा कर रहे थे
ठीक है, राइट एवरीवन, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल एवरीवन, टेक्स्ट योर मैसेज एंड से मी। ओके, सो एज वी वर टॉकिंग अबाउट, ओके हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, तो हैक ड्राइवर के बारे में। ओके यस यस एवरीवन, आई कैन सी योर मैसेज, यस यस, ट्राई टू हियर माय वर्ड्स एज आई एम सेइंग। अभी आप लोग मेरे शब्द को सुनिए, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। समझ में आ रही है मेरी बात? सो ट्राई टू हियर माय वर्ड्स एज आई एम टेलिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ओके, सो यू हैव टू टेल मी द हैक ड्राइवर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैक ड्राइवर। ठीक है, आपको बताना है मुझे, ठीक है ना, बताइए आप मुझे मीनिंग ऑफ हैक ड्राइवर। ओके गाइस, yes I am doing. Anubhav, as I am asking question, first of all try to give answer my question, don't worry about it, okay? Sahil is saying that someone who drives a taxi, शायद यहाँ पे सबसे पहले तो टैक्सी की बात ही नहीं हो रही बच्चा, इस बात को क्लियरिटी के साथ समझो आप, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हियर टैक्सी, इस बात को क्लियरिटी के साथ समझने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टैक्सी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इस बात को आप समझो, ओके। यहाँ पे टैक्सी की बात नहीं हो रही है। शुभम इज सेइंग दैट समवन हु ड्राइव्स अ हॉर्स कार, शुभम बता रहे हैं कि जो हॉर्स कार सर चलाते हैं उसे हम बोलते हैं। अच्छा, और बाकी सब बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, यू पीपल हैव टू आल्सो डू इट। अखिलेश बोल रहे हैं समवन हु ड्राइव टांगा। अच्छा, और कुछ बच्चे हैं उनका भी ओपिनियन सुन लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट। और कुछ बच्चे हैं उनका भी ओपिनियन सुन लेते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट गाइस। ओके, ट्रक ड्राइवर की बात नहीं हो रही है अर्णव, यहाँ पे ट्रक ड्राइवर की बात हो रही है, इस चैप्टर में कहीं 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 पे भी, ठीक है ना, ट्रक ड्राइवर की बात नहीं हो रही है, जस्ट कीप इन योर माइंड फर्स्ट। हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रक ड्राइवर, ओके। यहाँ पे ट्रक ड्राइवर की बात नहीं हो रही है। ओके अदिति मिस्त्री, यू पीपल हैव टू आल्सो रिप्लाई, रिप्लाई कीजिए आप लोग, रिप्लाई में आप सभी रिप्लाई कर सकते हो, यू कैन ऑल रिप्लाई, ओके। ओके गाइस, अच्छा चलो कौन बताना चाहता है, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल मी ना हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस चैप्टर। आप लोग में से कितने लोग इस चैप्टर के बारे में जानते हैं, वो मेरे को थोड़ा सा बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस चैप्टर गाइस, ये आप मेरे को बताइए थोड़ा सा, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस चैप्टर, टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू, टेल मी गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस चैप्टर। How many of you know about this chapter, guys?
I'm just going to tell about that. चलिए बताइए, आप लोग में से कितने लोग इस चैप्टर को पढ़े हो, पहले ये बताओ तो आप सभी। मिस्टी बोल रही है कि सर मैं नहीं पढ़ा हूँ, रैपिड रीडिंग किए हैं सर, अभी नहीं पहले से पढ़े हैं सर। ओके सर, मैसेज नहीं जा रहा है। ओके, आई कैन सी योर मैसेज, सेंड योर मैसेज, आई कैन सी गाइज। ओके, ऐसे नहीं बोलना कि सर मैसेज नहीं जा रहा है, मैसेज आपका आ रहा है मेरे पास। Wait guys, little bit, there is a network problem. Net is slow from my side. Okay, so there is no any problem regarding that, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, ठीक है। इस बात को लेके चलिए थोड़ा सा हम लोग ना प्रीवियस चैप्टर जो पढ़े हैं थोड़ा सा उसको पहले हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वन बाय वन मैं आप लोगों में से कुछ लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं और यू पीपल हैव टू स्पीक अबाउट द प्रीवियस चैप्टर विच वी हैव रेड, जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है उसके बारे में बताना है। चलो अभिनव विशाल थोड़ा सा आप बताओ तो। अभिनव अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अभिनव अनम्यूट करो अपने आप को आप। अभिनव अनम्यूट करो आप अपने आप को। Avino, you have to unmute yourself.
अभी ना अनम्यूट करो। I think there is some network problem, that's why it is happening. Okay, moving ahead guys, दूसरे से पूछते हैं, ठीक है? नैन्सी, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। Yes, sir. So as we have read, Madam rides the bus, okay? हमने ये Yes, चैप्टर sir. पढ़ा है ना? चलिए उसका आप शॉर्ट समरी मेरे को बताइएगा थोड़ा। Sir, Madam writes the bus is a story about a 8-year-old girl who she had no friends to play games with her, and her Okay. favorite pastime was to stand on the doorway of her house and watching the people who are traveling with the bus. Okay. She gradually developed a desire to ride the bus. So she started to collect information regarding about the bus, just like about the timings and about the fare of the travel. She collected the information that the bus journey from her village to the nearest town approximately took about the distance was approximately about 6 miles, and the bus fare took about 30 paise from only one way. So she Okay. decided she started collecting money to ride the bus. On one day, when her mother was taking a small nap, she stood on the roadside waiting for the bus and get on the bus, where she found the conductor, who was a joyful person, and referred him as a madam. Okay. There she pays her fare for the trip. The bug Now when she entered the bus, she started looking the view from the outside scenic view from the bus. She was enjoying the ride, and she was when she was going from that side, she was enjoying the ride. On the way, she saw an cow that ran widely in front of the bus and crossed the road. Um, the driver just as blew the horn, the cow crossed the road. First, Valley enjoyed this scene instead of realizing the fact after returning. When they were returning from the trip, she saw that the cow, which was uh, she noticed that the cow was now dead and realized that it was the same cow that ran rightly in front of her bus when she was on the way to the journey. After she saw this, she sat quietly in her seat, and then she returned home just on time. And then at her home, one member has come who then no one knew about her adventurous trip. This trip, no one knows about this her trip. That's all, sir. Okay, very good. Misty, now it's your turn. Misty. Misty, now it's your turn. Speak. Misty, now it's your turn. Try to speak, Misty. Why are you not speaking? Misty.
She has missed the class. Akash, unmute yourself. Yes, sir. Just speak about the summary of previous chapter which we have read. That is, Madam rides the bus. Yes, sir. Madam Rides the Bus is the lesson about a 8 years old girl named Veli. Her full name is Velia Mai, Okay. who did not have any friend. Because her favorite work is to stand on the doorways and see the village, the bus, and the passengers who rides the bus. Because she has interest in riding the bus. Uh, on her desires, she collected some information about that, as the time taken off for the bus is 45 minutes. The distance from the village to the town is 6 miles, and the cost of one way from the village to the town is 630 paise. Okay. She decided, yes, sir. She decided she decided that she could visit the town when her mother take a nap at the afternoon time. She uh, by She collected the money and visit to the bus stand and said the conductor to give him a pass so that she could ride on the bus. The conductor called him madam because she act like a madam who rode the bus. So from here, the story named the Madam Rides the Bus came from. Very good. Very good. The, Very good. the Yes, sir. Then she traveled on the bus. In between, Okay. yes, sir. In between, she made she सर बीच में भूल रहे थोड़ा सा. Just carry on. Carry on. Yes, sir. Yes, sir. While returning, she carried Okay. no, sir. While returning, she saw a cow lying lifeless on the road. That was it was the cow that she shot before when she was going to the town. On that time, it was very joyful, but now it looks like the lifeless on the road. Okay. Then she go there and sat down silently of the rest. Then she sat down because Try to speak in Hindi, Akash. Okay, try to speak in Hindi also. Okay, first of all, you have to speak clearly whatever you are saying in English and sorry in Hindi, and after that speak English. Okay, पहले आप हिंदी में कंप्लीट कीजिए बोलकर, उसके बाद आप इंग्लिश में बोलिएगा, ठीक है ना? फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप क्लियर बोलो whatever you are saying. Okay? Yes, sir. हाँ. तो वो मतलब वहां गई, मतलब वो सोच रही थी उसके बारे में कि कैसे ये एक क्रिएचर चेंज हो गया. जाते समय वो जॉयफुल था और अभी एक लाइफलेस, मतलब वो लाइफलेस हो गया था रोड के पास. तो वो पूरे अपने जर्नी में यही साइलेंटली सोच रही थी. और फिर जब वो घर गई तो उसने देखा कि उसकी मदर और उसकी एक आंट वहां पे बैठ के बातें कर रही थी. और Okay. Afterwards. Yes, sir. Yes, sir. Her aunt then referred to Valley as a noise-poking child who acts like a grown-up lady, but only Valley knew that she was referring to because, after all, no one knows about her journey. Very good. And now next, who will speak? Next. Thank you, sir. Afterwards, who will speak?
Now next I should ask from Prerna. Prerna, you have to speak. Prerna, you have to speak. Open your mic and speak. Yes, sir. Yes, continue. Yes, Prerna. Yes, continue, Prerna. Prerna, you have to continue this class. Yes, sir. Yes, सर आप continue. अलाउ नहीं कर रहे थे इसलिए माइक ऑन नहीं हो रहा था. Okay, अभी allow किया ना? Yes, Yes, continue. sir. So this story is about a girl named Valima. The story describes the long-awaited first bus journey of 8-year-old girl named Vali. Okay. Vali was 8 years old and lived in a village. She didn't have any playmate. Her favorite pastime was to stand in the doorway of her house and to see what went on the street. The most exciting thing of her was a hourly appearance of a bus that shuttled between her village and nearest town. She developed desire for riding the bus. She dreamed of Okay. having bus ride as soon as possible. In order to gain some information on about the bus, she listened to the conversation between her neighbor who frequently traveled on that bus. She also asked them various questions to know about the experience, the like the approximate distance between her village and the town, the time that the journey took, the amount of charge for one way fare. If she took 1 o'clock bus and returned on the same bus, she could be back home by 2:45 p.m. One fine day, Wally sneaked out of her house without her mother's knowledge and took the bus. Seeing the girl alone, the conductor offered to help her, but she declined the offer. The conductor was assumed by her action and called her madam. Wali here absorbed everything. She was very excited. Wali stood on her seat uh, to enjoy the outside view. A gentleman advised to sit down, but she got irritated and didn't listen to him. She didn't talk to the elderly woman also, who was chewing bitter nuts. Although she was only 8 year old, but she didn't like to be treated as a child. She enjoyed the sight of the trees and field passing by. But what interested her most was a cow running in the middle of the road. On entering the town, she saw many shops. She truly enjoyed her trip. After some time, uh, the bus uh, the bus reached the bus station. All the passengers got off except Wali. She told the conductor that she would go back to her village. She was enjoying her journey. She was enjoying her journey
uh, by looking at the same sight of trees and field. The same cow that had run ahead of the bus during her ride to the town of the bus during her ride to the town was lying dead on the roadside. Wali was filled with sadness. After reaching home, she found her mother talking to her aunt. Her mother was saying that it is not possible for the ladies like to know everything that happened outside. Wali responded to her mother observation by saying, "Oh yes." When her mother asked her to clarify, she smiled mischievously. Okay. Yes, sir. Okay, guys. So as you can see on your screen, the hack driver. Okay. आप सभी को दिखाई दे रहा है ना? बोलो हाँ या ना? स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? Okay, now, so as we have started here, the hack driver. Okay, what was my question to ask to all of you? Ki hack driver, can you please zoom it? Yes, I can. I can, guys. तो आप यहाँ पे देखो कि हम लोग जो चैप्टर ये हम लोग अपना कर रहे हैं ये दैट इज आवर द हैक ड्राइवर। अब जनरली देखो यहाँ पे बात कहाँ से स्टार्ट होती है ना कि द हैक ड्राइवर का सबसे पहले हम लोगों को मीनिंग समझना है। वेट गाइस, ओके एवरीवन क्लियरली? ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग द हैक ड्राइवर के बारे में बात कर रहे थे। वी आर टॉकिंग अबाउट द हैक ड्राइवर। ओके, तो हैक ड्राइवर का मीनिंग जो होता है यहाँ पे टोंगा ड्राइवर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? टोंगा ड्राइवर। ओके एवरीवन, नाउ लेट मी सी योर मैसेज आल्सो। देयर वाज सम एरर इन नेटवर्क, दैट्स व्हाई इट ऑकर्ड। सॉरी एवरीवन। चलिए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। यंगर लॉयर कम्स टू अ विलेज टू सर्व समन्स ऑन ओलिवर लटकिंस। अ फ्रेंडली hack driver takes him round the village in search of Lutkins. Does he find him? Who is Lutkins? तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि एक टोंगा ड्राइवर है जो, ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि एक इंसान आते हैं, ठीक है ना, उसके गांव में। आ रही बात समझ में? व्हाट इज ही इज अ लॉयर। वो क्या है? एक वकील है, ठीक है ना। तो वो एक गांव में जाते हैं जहां पे वो सर्च करने के लिए जाते हैं, खोजने के लिए जाते हैं किसको? लुटकिंस को, ठीक है। वहां पे उनको एक टोंगा ड्राइवर मिलता है। आ रही बात समझ में? और वो क्या करता है कि वो बोलता है कि आई विल हेल्प यू टू फाइंड ओके लुटकिंस, कि मैं आपकी मदद करूंगा खोजने में लुटकिंस को। दैट यू हैव टू गो थ्रू माई टोंगा। ओके, आपको मेरे टोंगा के साथ चलना है, ठीक है ना, इस पे आपको किराया पे करना है ना, आई विल हेल्प यू। आ रही बात समझ में ना? तो फाइनली क्या वो खोज पाता है कि नहीं खोज पाता है? वी विल रीड अबाउट दिस। और वो लुटकिंस कौन है ये भी हम लोग जानेंगे। व्हाट्स योर थिंकिंग गाइज? विल ही सर्च और नॉट? क्या वो खोज पाएगा कि नहीं खोज पाएगा? यू हैव टू टेक्स्ट योर मैसेज। आप मैसेज कर सकते हो। सर नहीं साहिल, अभी हम लोग ये पहले बात नहीं करेंगे। एज वी विल रीड आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अभी ये बात नहीं करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सभी। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनता है ना। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव टू गो थ्रू सम क्वेश्चंस। व्हाई इज द लॉयर सेंट टू द न्यू मुलियन? व्हाट डज
ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वो लॉयर को क्यों आखिर भेजा जाता है, वकील जो है उनको क्यों भेजा जाता है इस जगह पे, न्यू मिलियन पे। हमारी बात समझ में ना। और आखिर वो क्या जाकर, व्हाट डज द फर्स्ट थिंग अबाउट द प्लेस, आखिर वो पहला चीज क्या था कि जो उसके बारे में देखकर इंस्पायर्ड होते हैं, या उनको लगता है कि और भी गड़बड़ जगह पे वो आ गए हैं। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ ऑनर्स आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। तो यहाँ पे जो ये कहानी हमें वो बता रहे हैं, वो नैरेटर खुद है, एंड ही इज एयर एडवोकेट। यहाँ पे वो एडवोकेट का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना। सारी बात समझ में, अब चलो देखते हैं। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। अब देखो, वो बताते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ऑनर्स से वो क्या बनते हैं, तो एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन जाते हैं। कहाँ पे, तो मैग्निफिसेंट लॉ फर्म में, यानी कि वो जो लॉ फर्म था, लॉ फर्म करने का मतलब क्या है, एनीवन कैन मेक मी अंडरस्टैंड। ये अदालत से रिलेटेड था, ठीक है ना, ये कोर्ट कचहरी से रिलेटेड था, वहां पे ये वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आई वाज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व समन्स लाइक अ चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव। अब देखो बोल रहा है ना कि आई वाज सेंट, मुझे भेजा जाता था, ठीक है ना, नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स यानी कि दस्तावेज कागज तैयार करने के लिए नहीं, बट टू सर्व समन्स। अब समन्स कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, ये कोर्ट कचहरी में ऐसे काम होते हैं जिसमें कोर्ट चाहती है कि वो इंसान आकर कोर्ट में प्रेजेंट हो, यानी जिसको बुलाया जा रहा है वो कोर्ट में आकर हाजिर लगाए। अरे बस समझ में ना, जैसे कि आप देखते हो कि अगर कोई क्रिमिनल रहता है तो उसको कोर्ट में बुलाया जाता है, या अगर वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व रहता है तो उसको कोर्ट में बुलाया जाता है, आकर वो अपनी पेशी देता है। या अगर वो क्या होता है, विटनेस होता है किसी चीज का, तो उसको बुलाया जाता है कि आकर वो पेशी दे। अरे बस समझ में ना। तो इसका वर्क यही रहता था, ठीक है। इसके सारे सीनियर्स वर्क करते थे, बट इनका ये वर्क रहता था कि वैसे इंसान को ये जाकर खोज खोज कर और बुलाकर लाते थे। इनको ये वर्क क्या लगता था, काफी ज्यादा चीप लगता था, एक डिटेक्टिव की तरह, ठीक है ना। आई हैड टू गो टू डर्टी एंड सैडी कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक माई विक्टिम्स। अब देखो वो क्या बता रहे हैं, आई हैड टू गो टू डर्टी एंड सैडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक माई आउट ऑफ विक्टिम्स, यानी वो बोल रहे हैं कि मुझे जाना पड़ता था, अरे बात समझ में ना, मुझे जाना पड़ता था वैसे गंदे गंदे जगहों पे भी, ठीक है ना, शैडोई कॉर्नर्स यानी गंदे जगहों पे भी खोजने के लिए वैसे इंसान को जिसको बुलाया गया है कोर्ट में हाजिर होने के लिए। समवन ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवेंट बीट मी अप। अब इसमें क्या होता था ना, किसी किसी को ये बुलाने जाते थे, उसमें कुछ क्या होता था, सब जो इनसे मजबूत होता था वो इनकी पिटाई भी जम के कर दिया करता था सब। भाई अभी ऐसा वर्क कर रहे हैं जिसमें इनको पिटाई भी लगती थी, ठीक है। अब देखो क्या बता रहे हैं, आई हेटेड दिस अनप्लीजेंट वर्क। जाहिर सी बात है, जिस वर्क में आपकी पिटाई हो वो आपको वर्क अच्छा लगेगा, टेल मी, हाँ या ना। वर्क को आपको अच्छा लगेगा, डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे भी यही हो रहा था। ओके एवरीवन, इनको ये वर्क अच्छा, ठीक है ना, नहीं लग रहा था। अब देखो, एंड द साइड of city life it revealed to me. I even considered feeling to my hometown where I could have been a real lawyer right away without going to this unpleasant training period. अब देखो इनको कहीं ना कहीं अपने जगह की, अपने घर की याद आ रही थी कि वहां पे जाके कम से कम तो मैं आराम से रह सकता हूँ ना और लॉयर बन सकता हूँ। ये जो प्रेजेंट, ये कितना कड़ा हार्ड टाइप का जो ट्रेनिंग मुझे मिल रहा है उससे तो बच जाऊंगा ना। अब देखो आगे क्या होता है। So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Mullion to serve summons on a man called Oliver Lutkins. अब देखो क्या होता है ना, कुछ दिनों के बाद इनको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है भाई, कि वर्क से ही इनको क्या बोला जाता है कि जाओ दूसरे कंट्री में जाओ और वहां जाकर एक ओलिवर लुटकिंस है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार इन्होंने नोटिस किया, मैसेज किया कि आप आकर कोर्ट में हाजिर हो जाओ, ठीक है, बट दैट द पर्सन वाज नॉट कमिंग, ये पर्सन आ नहीं रहा था, ठीक है। तो अभी क्या होता है ना कि ये किसको, तो हमारे जो ये न्यू लॉयर है यानी जो ऑथर है, ठीक है ना, उनको ये क्या कहते हैं कि जाइए और जाकर लेकर आओ। अरे बस समझ में ना। तो ये कहा था, तो टाउन से 40 माइल्स अवे था, दूर था, ठीक है ना। और ये जगह क्या नाम था, तो न्यू मिलियन नाम था इस जगह का जहाँ पे इनको जाना था। किसे खोजने के लिए, तो ओलिवर लुटकिंस, देख रहे हो ना, ये ओलिवर लुटकिंस को खोजने के लिए उनको जाना था गाइस, ठीक है, इस इंसान को। अरे बात समझ में ना, इन्हीं को, ठीक है। अब आगे देखते हैं। We needed this man as a witness in law case and he had ignored all our letters. अब इनकी जरूरत क्यों थी,
लुटकिंस की जरूरत क्यों थी लोगों को? तो वी नीडेड दिस मैन, हमें इस इंसान की जरूरत थी एज अ विटनेस, गवाह के लिए एक केस में, ठीक है ना। एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स, लेकिन इसने क्या किया था, इनके सारे लेटर्स को इग्नोर कर दिया था। इन्होंने इससे पहले इन्होंने बहुत सारे लेटर्स लिखा था कि भाई तुम आ जाओ, देयर इज अ नीड ऑफ यू, तुम्हारी जरूरत है, दैट यू हैव टू प्रेजेंट देयर, तुमको वहां पे प्रेजेंट रहना है। बट उसने क्या किया था, ही हैज ऑलरेडी इग्नोर्ड ऑल द लेटर्स गाइस। ओके, व्हेन आई गो टू न्यू म्यूलियन, my eager expectation of a sweet and simple country village were horribly disappointed। अब देखो, ये तो काफी ज्यादा खुश था कि अरे मेरे को दूसरे जगह पे जाने को मिल रहा है, वो जगह काफी अच्छा होगा, बढ़िया होगा। बट जैसे ही वहां पे वो पहुंचता है, ओके एवरीवन, जैसे ही वो वहां पे पहुंचता है, वो क्या देखता है, ठीक है। When I got to New Million, my eager expectation of a sweet and simple country village were severely disappointed। Its streets were rivers of mud with rows of wooden shops, either painted or a sour brown। अब देखो, जैसे ही वहां पे पहुंचता है तो देखता है क्या, ये तो और भी ज्यादा, ठीक है ना, गंदा जगह है। यानी कि वो मट्टी, पूरा पानी गिरा हुआ, मट्टी लगा हुआ जगह, कीचड़ से भरा हुआ जगह था वो, ठीक है। और जो वहां पे कुछ दुकान भी थी, तो वो लकड़ियों की दुकान थी, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? अगर वो पेंट भी किया गया था तो गंदे ब्राउन कलर से वो पेंटेड था, और कुछ तो ऐसे ही दुकान लगा हुआ था, लाइनों में खड़ा था। इट मीन्स कि वो ऐसे जगह पे जाते हैं कि जो काफी ज्यादा क्या है, ठीक है ना, पिछड़ा जगह है, ठीक है। द ओनली एग्रीबल साइट अबाउट द प्लेस वाज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। वहां पे एक ही चीज जो ठीक था देखने लायक, वो क्या था, डिलीवरी मैन। व्हाट डू यू मीन बाय डिलीवरी मैन? जो सामान को आपको इधर से उठा के उधर नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी मैन, ठीक है। ही वाज अबाउट 40, वो कितने का था, ठीक है ना। अबाउट ही वाज अबाउट 40, यानी 40 इयर्स ओल्ड था। रेड फेस, चीयरफुल एंड थिक अबाउट द मिडिल। और थिक अबाउट द मिडिल कहने का मतलब क्या, मतलब उसका स्टोमक था जो बाहर की तरफ निकला हुआ था, यानी वो हेल्दी इंसान था। ओके एवरीवन, हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी एंड वर्न वेल वर्न एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर। अब देखो, वो जो कपड़ा पहना हुआ था ना, वो क्या था, तो डर्टी था। जाहिर सी बात है, जो सामान को इधर से उधर कर रहा है, ठीक है, जो भी आपका गुड्स है उसको इधर से उधर कर रहा है, वो मतलब रख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसका कपड़ा तो काफी अच्छा बढ़िया होगा नहीं, ठीक है। और उसका जो कपड़ा भी था वो भी कुछ हद तक क्या था, फटा हुआ था। बट वो इंसान देखने से क्या लग रहा था, काफी ज्यादा फ्रेंडली मैनर टाइप का वो इंसान लग रहा था। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपुल। और ऐसा महसूस हो रहा था ना कि मानो कि वो लोगों को पसंद करते हैं, वहां पे लोग जो आते हैं उन लोगों को अच्छा लगता है उनकी मदद करना। अब देखो, अब ये बोलता है आई वांट, मैं चाहता था, आई टोल्ड हिम, कि मैं कहूं, टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिंस, कि मैं कि यहाँ पे खोजने आया हूँ, सर्च करने आया हूँ ऐसे इंसान को जिसका नाम क्या है, लुटकिंस। लुटकिंस, आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर एगो। अब देखो, जो हैक ड्राइवर है ना, वो बोलता है कि अरे लुटकिंस, लुटकिंस को तो मैंने देखा था, ठीक है ना, 1 घंटे पहले यहीं पे कहीं। आ रही बात समझ में ना? समझ में आ रही मेरी बात गाइस? क्या बोलना चाहते हैं वो, क्या लुटकिंस को तो मैंने देखा था 1 घंटे पहले यहीं पे। ओके, अब देखो, हार्ड फिलो टू कैच दो, ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, ठीक है ना। अब देखो क्या बोले, हार्ड फिलो टू कैच अप, यानी कि उस इंसान को पकड़ना ना तो बहुत ही मुश्किल है। क्या है, मुश्किल है, ठीक है। कौन बोला सर? टोंगा ड्राइबल बोल रहा है आदित्य, ठीक है। हार्ड फिलो टू कैच दो, ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, यानी कि कभी एक जगह पे कभी दूसरे जगह पे रहता है। ही इज प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिज शॉप, यानी ठीक है, जो बोल रहा है कि जनरली वो कहाँ पे देखने को मिलता है, तो पोकर गेम खेलते हुए। इट इज अ शॉर्ट काइंड ऑफ गेम, जो कि क्या, कार्ड से गेम को खेला जाता है, दैट इज कॉल्ड पोकर गेम। तो बोल रहा है कि बिहाइंड फ्रिज शॉप, यानी फ्रिज के दुकान के पीछे, ठीक है, वो जनरली खेलते रहता है। आई विल टेल यू बॉय, इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिंस। अब देखो, नरेटर से, इट मींस जो लड़का खोजने गया है उससे पूछता है कि अच्छा मैं तुम्हें बताऊंगा लड़का, क्या तुम बताओ, तुमको जरूरी है, जल्दी है क्या उसको खोजने की, कोई जल्दी है क्या, मेरे को बताओ। यस आई वांट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू सिटी। बोल रहा है कि हाँ, मैं इससे मिलना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे आफ्टरनून, ठीक है ना, शाम को इधर से क्या करना है, तो दोपहर वाला ट्रेन, आफ्टरनून मीन्स दोपहर, अरे समझ में ना, कि ट्रेन है उसको पकड़ना है।
आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट, और ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और सीक्रेट है, मैं क्यों उससे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, आई विल टेल यू व्हाट आई हैव got a hack. I will get it out and we can drive around together and find Lutkins. तो बोलता है ना कि मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, कि कहाँ पे लुटकिंस मिलेगा, मेरे पास टोंगा है, उससे हम लोग, ठीक है ना, उसको सर्च करेंगे, ठीक है ना, कि कहाँ पे लुटकिंस है। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेस ही हैंग्स आउट, मैं जानता हूँ मैक्सिमम जगह पे वो कहाँ कहाँ पे जाता है, ठीक है। तो जनरली आप उससे मिल पाइएगा, आप मेरे साथ चलिएगा। तो ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लूड विथ द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन। अब जैसे वो जिस तरीके से वो टोंगा ड्राइवर बात कर रहा था ना, उसकी बातों को सुनकर, फ्रेंडली नेचर को देखकर, ये हमारे जो यहाँ पे नरेटर है काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इट मीन्स जो कि जूनियर जो असिस्टेंट लॉयर है, अरे बस समझ में ना, वो क्या होते हैं, काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि कितना मतलब फ्रेंडली नेचर है, ठीक है ना। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस, वो बोल रहा है ना, देखो कौन बोल रहा है, आई न्यू यहाँ पे, तो नरेटर है वो बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि वो मेरे साथ बिजनेस कर रहा है, कि आखिर वो मेरे को टोंगा पे बैठाएगा तो उसका तो किराया लेगा, जरूर ही लेगा, ठीक है। बट हिज काइंडनेस वाज रियल, लेकिन बोल रहा है ना, जो अपना वो काइंडनेस दिखा रहा था वो एकदम रियलिटी लग रहा था कि रियल है। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फिलो, और बोला है ना, मैं काफी खुश था कि ये मेरा जो किराया, जो मैं पैसा ये मेरे से लेगा, इस इंसान के पास जाएगा। अरे बात समझ में ना, व्हाई डज ही वांट्स टू से सच काइंड्स ऑफ वर्ड, वो ऐसा क्यों बोलना चाहते थे, बिकॉज अगर वो नहीं मिलता तो दूसरा तो वो टोंगा करते कि नहीं करते जाने के लिए। अरे बस मैंने, और दूसरे को किसी को पैसा देना पड़ता कि नहीं पड़ता, वो इसीलिए उन्होंने ये बात को बोला यहाँ पे, ठीक है। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 an hour। अब देखो बार्गेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्गेन, यू पीपल हैव टू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्गेन। बार्गेन का मीनिंग बताइएगा आप सभी। बार्गेन का मीनिंग बताइए आप सभी। और नो, रेट कम करवाना, हाँ वही जो मोल भाव कराता है ना, रेट कम करवाता है उसी का। तो अब ये बोल रहा है ना कि मैंने भी क्या किया कि उनसे बार्गेन करवाया, मोल भाव कराया, रेट कम करवाया, ठीक है ना। और क्या इन लोगों का हुआ कि पर आवर का मैं आपको कितना दूंगा, $2 दूंगा, ठीक है ना, कितना डॉलर, $2, ओके। एंड देन ही brought from his house nearby a sort of large back box on wheels. He remarked, well young man, here is the carriage, and his wide smile made me into an old friend। अब देखो क्या होता है, जैसे ही बार्गिंग हो गया, पैसे का क्लियर हो गया कि $2 पर घंटा का मैं आपको दूंगा, उसके बाद वो क्या करता है, अपने टोंगा को लेके आता है, ठीक है, और बोलता है स्माइल वे में बोलता है कि ये रहा तुम्हारा कैरेज, जिसपे हम लोग सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए जाएंगे, किसको, लुटकिंस को। और वो ऐसे बिहेव कर रहा था, तब देखो ही मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड, और वो ऐसे स्माइल दिया कि जैसे लगा कि मेरा कोई पुराना दोस्त है। These villagers आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर। अब देखो इसको क्या लगता है ना कि यहाँ के जो गांव के लोग हैं ना, काफी ज्यादा हेल्पफुल नेचर के हैं। कोई भी अगर अजनबी इंसान यहाँ पे आता है तो उसकी वो लोग हेल्प करते हैं, बाद में मालूम चलेगा कि हेल्प करते हैं कि क्या करते हैं, ओके। ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ऑन टास्क टू फाइंड ओलिवर लुटकिंस फॉर मी, और ऐसा लग रहा है ना, दिस इज नॉट माय वर्क, कि ये मेरा काम नहीं है लुटकिंस को सर्च करना है। ये लग रहा है कि अब जो टोंगा ड्राइवर जो मेरा हेल्प कर रहा है, उसी का काम ये हो गया है कि लुटकिंस को सर्च करना, ठीक है ना। ऐसे तरीके से मेरे अपने काम को वो खुद का काम समझ रहा है, ओके एवरीवन। ये सारा कुछ ये सोच रहा है, ठीक है ना, नरेटर। He said, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins। अब देखो, अब यहाँ पे जो टोगा ड्राइवर है ना, वो क्या बोलता है कि मैं तुमको इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ, कि आखिर किस पर्पज से तुम यहाँ पे आए हो, ठीक है ना, लुटकिंस को सर्च करने के लिए, खोजने के लिए, बट मेरे को जहां तक लगता है कि तुम अपना पुराना पैसा उससे मांगना चाहते हो, ठीक है ना, कि कुछ हो सकता है तुमने उसको दिया होगा, ठीक है, पैसा तो वही तुम अब उससे लेना चाहते हो, दे नहीं रहा है, इसीलिए आज तुम आए हो। कि नेवर पेज एनीबॉडी अ सेंट, और बोल रहा है ना कि वो किसी को कभी पैसा नहीं वापस करता है, अगर वो ले लिया तो किसी को नहीं रहता। ही स्टिल ऑज मी 50 सेंट्स ऑन अ पोकर गेम। अब बोल रहा है ना कि इसने मुझसे, ऑज मतलब क्या होता है, उधार लेना, कि अब जो टोंगा ड्राइवर है वो भी बोल रहा है कि लुटकिंस ने मुझसे 50 सेंट, यानी वहां के पैसे की बात हो रही है, उसने मुझसे लिया था वाइल प्लेइंग पोकर गेम। आई वाज फूल, बोल रहा है कि क्या आई वाज, देखो यहाँ पे यू कैन सी दैट, ये उसका है टोंगा, जिसपे ये देख रहे हो ना, इसका स्टोमक बेली कैसे बाहर निकला हुआ है, जैसे बताया था, और इसका फेस 40 इयर्स का देखने से लग रहा है स्टार्टिंग में, सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, और ये आपके कौन हो गए, तो ये नरेटर है जो कि सर्च करने के लिए गए हैं लुटकिंस को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है कि आई वाज फूल, कि मैं बेवकूफ था, ठीक है ना,
क्यों बेवकूफ था? देखते हैं, इनफ टू प्ले विथ हिम, कि मैंने उसके साथ खेला। ही इज नॉट डेली बैड, अब लेकिन ये भी बोलता है कि इतना भी नहीं है कि बहुत ज्यादा वो खराब है, ठीक है ना, बैड इंसान है, बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी, ठीक है ना, लेकिन अगर वो, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है कि उससे कोई पैसा निकलवा ले। इफ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लोथ्स ही विल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू। ओके, और वो बोल रहा है ना कि अगर आप चाहो कि ऐसे आके इतने फैंसी ड्रेस में आके उसके पास से तुम पैसा लेके चले जाओ, तो सस्पिशियस पहले ही वहां से भाग जाएगा, ठीक है ना, और आपको ये पकड़ में भी नहीं आ पाएगा लुटकीज। इफ यू वांट आई विल गो इनटू फ्रिज एंड आस्क फॉर हिम, अगर बोलता है कि अगर तुम चाहते हो, ठीक है ना, कौन बोला? टोंगा ड्राइवर बोल रहा है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे जगह पे, ठीक है ना, तुम्हारे जगह पर जाकर और फ्रिज के दुकान में, ठीक है ना, और उससे पूछूंगा। आड़ी बात समझ में? तो यहां तक की स्टोरी किस किस को समझ में आया गाइस? एक बार आप लोग, फ्रिज एक अनदर पर्सन है, ठीक है ना, वो बार्बर है, हम लोग को बाद में मालूम चलेगा क्यों, क्या है, बार्बर है। किस किस को समझ में आया यहां तक स्टोरी को? टेल मी गाइस। और नो मी, मेरे को समझ में आया सर। गाइस यू हैव टू वंस अगेन रीड दिस, ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम अनदर क्लास। दूसरे क्लास में हम लोग फिर से स्टार्टिंग से पढ़ेंगे इसको। आ रही बात समझ में ना? अगर आपका क्लियर नहीं होगा तब ऑनेस्टली यू पीपल हैव टू स्पीक। अभी सभी कोई बोलेंगे सर मेरे को समझ में आ गया, मेरे को समझ में आ गया, वेरी गुड। क्लियर है? चलिए, क्रिस्टल क्लियर है, तब क्या जरूरत है, इफ यू ऑल आर गेटिंग दिस ऑल थिंग्स। सो एज वी हैव रेड, मार्क ऑन योर नोटबुक, आप अपने नोटबुक में इसको मार्क कर लीजिए। एंड इफ यू फाइंड एनी अनफैमिलियर वर्ड्स देन यू हैव टू टेक्स्ट मैसेज, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस, ओके। आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन।